کیا اسلام حکمت کا دین ہے؟ کیا اگر آپ کو اور مجھے کوئی اسلام کے متعلق سوال کرے گا کیا ہم اس کو حکمت سے جواب دیں گے؟ دوستو السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم بات کریں گے ایک عالم کے متعلق جو حکمت بھرا جواب دیتا ہے۔ یہ ایک سیمینار چل رہا تھا انڈونیشیا میں، کوسچن آنسر کا، اور اسی میں ایک غیر مسلم خاتون آتی ہے اور وہی کفریہ سوال کرتی ہے۔ سوال کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اللہ کو کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے پھر وہ کیسا موجود ہے؟ تو دیکھو اس عالم کا حکمت بھرا جواب۔ اور یہ ہوگا ایک سوال۔ دوسرا سوال، میں بچپن سے سنتی آئی ہوں، کیا عیسائی مذہب اور عیسائی دھرم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اور تیسرا سوال، کیا جو مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں کیا وہ کافر نہیں ہیں؟ دیکھو آج ہم حکمت سیکھیں گے واللہ اس عالم سے۔ عالموں کو سننا چاہیے کیونکہ انسان کا دل تازہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی برکت دیا ہے، واللہ یہ حکمت سے ان کا علم حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ عالموں کو سننا چاہیے ہر وقت کیونکہ وہ انسان بھٹکے گا نہیں جو انسان عالموں کو سنے گا واللہ۔ تو آپ یہ ویڈیو انت تک دیکھنا، آپ کو حکمت بھرا جواب ملے گا۔ عالموں کو قدر کرنا چاہیے۔ اللہ ان عالموں کو سلامت رکھے۔ یہ حدیث نبی بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی وارث نہیں ہے، اگر کوئی وارث ہے وہ ہے میرا عالم۔ عالموں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، آپ اور میں کیا ہے، آپ کو بھی ان کو عزت کرنا چاہیے۔ چلو آج ہم سیکھیں گے حکمت کیسی کرنی ہے، حکمت کا جواب کیسا دینا ہے۔ چلو دوستو اس عالم کا آج جواب سنیں گے۔ آپ یہ ویڈیو انت تک دیکھنا، تب آپ کو حکمت بھرا جواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے موجود ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچپن سے ہی میں اسکول سے سنتی آئی ہوں کہ عیسائی کافر ہیں، کیا ثبوت ہے اس کا؟ اور کیوں کوئی عیسائی کو کافر کہتا ہے جبکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو خود اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو کیا وہ کافر نہیں؟ یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عیسائی لڑکی نے کیا تھا، اور یہ سوال کرتے ہوئے اس لڑکی کا لہجہ روحان سا ہو گیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے جن شکایتی نظروں سے یہ سوال کیا تھا، لگ رہا تھا وہ اپنی پوری زندگی کا حساب مانگ رہی ہے۔ یہ ساری گفتگو انڈونیشیا کی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے آپ کی سہولت کے لیے ہم اس کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ سے متعلق پہلے سوال پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میرا دوست جان ہے، اس کے بھائی ٹام نے ایک بچے کو جنم دیا، مجھے بتائیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس لڑکی نے پہلے تو کافی دیر سوچا، پھر جواب دیا کہ لڑکی کو جنم دیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ نے لڑکا کیوں نہیں کہا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ذہن میں لڑکی آیا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مترجم سے کہا کہ میرا سوال ایک بار پھر ترجمہ کر کے بتائیں کہ میرے دوست جان کے بھائی ٹام نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، بتائیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ تو مترجم نے ایسا ہی کیا، جس پر وہ لڑکی فوراً سوال سمجھی اور ہنستے ہوئے بولی کہ میں اس سوال کا جواب نہ ہی دوں تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ جواب دیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹام لڑکا ہے، وہ کیسے کسی بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے ہاں اب آپ سمجھی ہیں، جب ایک لڑکا کسی اولاد کو جنم دے ہی نہیں سکتا تو یہ سوال ہی غیر منطقی ہے کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ سوال غیر منطقی ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ جیسے ہی کوئی کہے گا کہ خدا کو کسی نے پیدا کیا، اسی وقت اس کے خدا ہونے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا وہ ہستی ہے جس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا مگر وہ سب کا خالق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں میں اس جواب سے مطمئن ہوں۔
So Allah Subhanahu wa Taala by definition. Jadi Allah Subhanahu wa Taala itu secara definisi tidak diciptakan. Created Allah, he's not Allah. Jadi ketika ada yang menciptakan Allah, maka yang diciptakan tersebut bukan Allah. Itu saja. Okay, I'm really understand what you. Terima kasih. उस लड़की के दूसरे सवाल से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं: ईमान, नेक अमाल, सब्र और नेकी की तरफ बुलाना और बदी से रोकना। नाम अब्दुल सुल्तान, जाकिर या मोहम्मद होने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए ईमान होना चाहिए। नाम के मुसलमान होने से जन्नत का टिकट नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए ईमान पक्का होना चाहिए। इस्लामी तालीमात की पैरवी नहीं करते तो ईमान नामुकम्मल है। ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ नाम के या झूठे मुसलमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा, क्या आप ईसाई खानदान से ताल्लुक रखती हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, जी मैं ईसाई हूँ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आप मानती हैं कि एक खुदा है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ। डॉक्टर साहब ने पूछा, आप समझती हैं कि जीसस खुदा हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि वो मेरे मसीहा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम अंबिया ने लोगों को बचाया और उनको सीधा रास्ता दिखाया, तो इस हिसाब से वो सभी मसीहा हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा हैं या पैगंबर? तो उस लड़की ने जवाब दिया, वो खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आप मुझे बाइबल में से कोई एक आयत दिखा सकती हैं या बता सकती हैं जिसमें जीसस ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो? उस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं यहाँ अपने ईमान का दूसरों के ईमान से मवाजना नहीं करना चाहती, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब मिले कि ईसाइयों को काफिर कहना दुरुस्त है या नहीं। डॉक्टर साहब ने यह जवाब सुनकर उस लड़की को समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया और कहा कि जीसस से मुतालिक कुरान पाक में लिखा है कि वो मुसलमान थे, यानी वो इंसान जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी पर छोड़ दे वो मुसलमान कहलाता है। बाइबल में भी लिखा है कि जीसस ने कहा, मेरी नहीं मेरे खुदा की मर्जी। तो साबित होता है कि जीसस मुसलमान थे। अगर तो आप बाइबल की पैरवी करती हैं तो लाजमी जन्नत में जाएंगी और कोई भी आपको काफिर नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप चर्च की मानती हैं तो जन्नत में दाखिला मुश्किल है, क्योंकि चर्च ही ये सिखाता है कि जीसस खुदा है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा है। ये सारी गलत बातें चर्च की फैलाई हुई हैं। आपको इन पर अमल नहीं करना चाहिए। इनसे सवाल करना चाहिए कि बाइबल में तो ये नहीं लिखा, तो आप क्यों हमें ये सब बता रहे हैं? इनसे कहें कि बाइबल में जीसस ने कहीं नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, या उन्होंने खुदाई का दावा किया हो, तो आप कहां से हमें ये तालीमात दे रहे हैं? आपको बाइबल पर अमल करना चाहिए जो आपकी आसमानी किताब है। डॉक्टर साहब ने बताया कि बाइबल में तो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर भी दी गई है। गॉस्पेल ऑफ जॉन्स में लिखा है कि जीसस ने कहा कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो मुकद्दस रूह आएगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी, वो जो भी बोलेगा अपने रब की मर्जी से बोलेगा। ये इशारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। डॉक्टर साहब ने ओल्ड से न्यू टेस्टमेंट तक बेशुमार हवाले दिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तरफ इशारा है। उसके बाद आपने उस लड़की से पूछा, अब मुझे बताएं कि इतने सारे हवाले देने के बाद क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा थे या पैगंबर? वो लड़की कुछ झिझक के बाद बोली, मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले रिसर्च करना पड़ेगी और इस हवाले से मजीद इल्म तलाश करना है। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आपको सारे हवाला जात तो दे दिए, लेकिन ठीक है, फिर भी आप घर जाकर रिसर्च करें और जब आपको यकीन हो जाए कि जीसस खुदा नहीं पैगंबर हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तब आप भी ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब का ये जवाब सुनकर उस लड़की ने कहा कि मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, खास तौर पर मुसलमानों से, कि हम एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि एक दूसरे के मजहब का मजाक नहीं उड़ाना और एक दूसरे को बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना। अगर ऐसे हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। अपनी बात कहकर उस लड़की ने माइक छोड़ा और जाने लगी तो डॉक्टर साहब दोबारा माइक पर आए और कहा कि हम यहाँ एक दूसरे के मजहब को बुरा नहीं कहने आए, बल्कि हम तो इन चीजों पर बात करने आए हैं जो इस्लाम और ईसाईयत में एक सी हैं। मैंने आपको ये चीजें मुख्तलिफ हवालों के साथ समझाई हैं, मगर आप नहीं समझेंगी, तो फिर इस तरह कोशिश करने का क्या फायदा? मैं आपको बाइबल से ही वो बता रहा हूँ जो कुरान में भी लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कुछ भी दोनों किताबों में एक सा है उसको मानते हैं, जो नहीं है उसको कल पर छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त ना खाओ। बहन मुझे बताएं, आप सूअर का गोश्त खाती हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं खाती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, क्यों खाती हैं जब बाइबल में लिखा है मत खाओ? कुरान में लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना, इसलिए मैं नहीं खाता। मैं कुरान पाक पर अमल करता हूँ, आप बाइबल पर अमल क्यों नहीं करती? किसका कसूर है, आपका या मेरा? Sister, do you have pork? Do you have pork? Apakah Anda makan babi? Do you have pork?
Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible Who's sendiri to menyatakan blame, you tidak or me? boleh makan So if babi. you're not following your Jadi, Bible, where are mohon you a jangan believer salahkan in the saya. Bible? Who's to blame, you Apabila or me? Anda Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 benar-benar verse ingin number mengikuti 3. Bible, In maka Surah Anda Baqarah harus chapter mengikuti 2 verse Bible tersebut. 173. Apabila Anda seorang It's Kristen mentioned in Surah Nahl chapter yang 16 sejati, verse maka Anda harus 115. mengikuti Bible, That not karena to itu have adalah pork. I'm kata-kata not Tuhan. having pork. Why don't you follow your Bible? डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ थोड़ा सा तल्ख हुए, कुरान पाक उठाकर कहा, आप मुझे इस किताब से कोई भी चीज उठाकर कहें कि मैं इसको नहीं मान रहा, मैं फौरी तौर पर इस आयत पर अमल शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं इस किताब को मानता हूं तो इस पर अमल करना मेरा फर्ज है। आप भी बाइबल पर अमल करें। क्या आप शराब पीती हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं शराब नहीं पीती। डॉक्टर साहब बोले, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या ईसाइयों की अक्सरियत नहीं पीती? उस लड़की ने इकरार किया कि हाँ, बहुत से ईसाई शराब पीते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी बात है, आप नहीं पीती, मगर ईसाइयों की अक्सरियत पीती है, जो बाइबल की तालीमात के खिलाफ है। उस लड़की को कुछ बात समझ आई तो उसने एक बार फिर अपना मुद्दा रखा और कहा, मुझे असल मसला लफ्ज काफिर से है, ये बहुत बुरा लगता है जब कोई आपको इस नाम से बुलाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि काफिर अरबी लफ्ज है जो कुफ्र से निकला है, इसका मतलब है छुपाने वाला या मुस्तरद करने वाला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेज से एक चीज उठाई और इसको अपनी कमर के पीछे छुपाया और कहा कि मैंने ये चीज छुपाई है तो अरबी में आप मुझे काफिर कह सकती हैं। कुरान पाक में लिखा है कि किसान बीजों को जमीन में छुपाते हैं, वो भी काफिर कहलाए जा सकते हैं। मगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो सच को मुस्तरद करने वाले को काफिर कहा जाएगा। मैंने बाइबल के हवाले दिए, अगर आप इनको मुस्तरद करती हैं तो आप काफिर कहलाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा, अरबी में काफिर का मतलब है इस्लाम को न मानने वाला यानी गैर मुस्लिम, तो अगर मैं आपको गैर मुस्लिम कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर आपको काफिर कहने पर बुरा क्यों लगेगा, जिसका मतलब है गैर मुस्लिम? डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर अपनी बात खत्म की कि आपको खुद को गैर मुस्लिम कहने पर बुरा लग रहा है तो आप कुरान पाक का मुतालिया करें और मुसलमान हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बहन को हिदायत मिल गई और कोई आपको काफिर भी नहीं कहेगा। Comment, share and subscribe to